اعتراض کرنے والا اعتراض معترض یہ کرتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں، نہ نبی کی بات کرتے ہیں، نہ خدا کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ جوان میرے ساتھ ساتھ رہنا، ہم زمانے کو علی علی سنا کے بتاتے ہیں جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا، جس قوم کا امام ایسا ہے اس قوم کا نبی کیسا ہوگا۔ 70 مقامات پہ سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم ماتمی یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ 70 مقامات پہ نبی کی حدیث ہے۔ نبی نے کہا یا علی لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، جسمو کا جسمی، حلبو کا حلبی، بغضو کا بغضی، عدوو کا عدوی، انت منی و انا من کا۔ اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ پوری تواریخ اٹھا کے دیکھو، ساری زندگی ابو طالب کے بیٹے علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ میں علی جیسا، ساری زندگی علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہے میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، میں تیرا عبد۔ میرا تاریخ مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے؟ جس کا بنتا تھا جس کا بنتا تھا اس نے کہلوایا نہیں۔ ساری زندگی نبی کہتے رہے یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ حتیٰ کہ جب رسول نے ہجرت کی ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہم ممبر پہ نام لے لیتے ہیں پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ ممبر پہ نام لیے جاتے ہیں، اور کچھ نام ویسے بھی ممبر پہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ ممبر پاک ہوتا ہے اور نام ناپاک ہوتے ہیں۔ کچھ نام میں جان بوجھ کر ممبر سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن تاریخ میں چھٹی سے دینیات سے لے کے PhD کی اسلامیات تک پڑھایا جاتا ہے کہ نبی نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، جس جس کی نیت ملتی تھی اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا، کمبر کو مقداد کا بھائی بنا دیا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سنی عالم دین اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بوسہ دے کا ماذا یبکی کا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ سنی کتاب میں حوالہ نہ ہو، میں چوک پہ گردن کٹواؤں گا۔ نبی نے دیکھے گا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ نبی کہتا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور تو مسجد کے محراب میں کہہ رہا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان میں۔ اس کا مطلب تیرا عقیدہ اور ہے، نبی کا عقیدہ اور ہے۔ سارے بولا مل کے بولا حیدری۔ تو جو ہے سامان اجازت ہے تو بات بڑھائی جا سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ علی کے نوکروں کا۔ میں یہ بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج پورے ملک میں شور برپا ہے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں جن کا نبی پہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ میں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے لگا، حقیقی شیعہ نمائندگی کرنے لگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت پہ اصل حصہ کس کا ہے؟ تحریک ختم نبوت کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کر سکتا ہے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے لے کے علماء بورڈ تک بیٹھے ہوئے مولوی سے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کے مرزائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا۔ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہہ لیا کرو، لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ جانا اکیلے نہ جانا، کیونکہ اگر تم گئے تو تم ختم نبوت پہ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے حدیث کہی تھی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟
बोले मेरी कौम का नौजवान मेरे साथ बोले। तुमने अपनी किताबों में ये हदीस लिखी कि हदीस है रसूल की कि अगर मेरे बाद नबी होते तो फलां होते। खत्म नबूवत पे बात कैसे करोगे? मरज़ई तुम्हारे सामने तुम्हारी किताबें रख देगा, वो कहेगा तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारी किताबों में नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश है। हम मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं ताकि दुनिया को बताएं कि नबूवत आज भी अली वलीउल्लाह की वजह से महफूज है। और मेरी कौम के हाथ से इतने कमजोर नहीं है। जब जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में मेरी कौम के नौजवानों तक ये फिक्र पहुंचाना चाहता हूं, बुजुर्गों के जहनों में ये तस्वीर पहले से मौजूद है। जब जुल्फकार अली भुट्टो के दौर पे लियाकत भाई मिर्जा नासिर ने, उस दौर के मरज़इयों के रहनुमा ने, अखबारात में मनाज़रे का चैलेंज किया था कि मुसलमानों हमारे बच्चे यतीम ना करो, हमारे घर ना जलाओ, हमारी बस्तियों को आग ना लगाओ, हमारे साथ बहस करो, हम तुम्हें किताबों से साबित करेंगे तुम्हारे नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश है। तुम्हारे पूरे मुल्क में ऐसे खामोशी थी जैसे खंदक के मैदान में थी। मैं शिया कौम की तारीख सुनाने लगा हूं लाहौर में खड़ा होकर। सारे मौलवी इकट्ठे होकर इसी शहर लाहौर में आगा शोरश काश्मीरी के पास आए। उस दौर के अहले सुन्नत का जय्यद नाम था। उन्होंने आके कहा आगा शोरश काश्मीरी मिर्जा नासिर रोजाना अखबारात में मनाजरे का चैलेंज कर रहा है। तो उसने कहा चैलेंज कर रहा है तो फिर आप मौलवी करें मनाजरा। उन्होंने कहा नहीं जी हम कारी हैं, हाफिज हैं, बात मनाजरे की है, शियों का इस्माइल बुलाओ। जवान सर उठाए, मैं मजहब की तारीख सुनाऊं तुम्हें, मैं बताऊं हमारे मजहब की हकानियत क्या है। बात मनाजरे की है, मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल को बुलाना पड़ेगा। इतना जुमला कहना था, यहां आगा शोरश काश्मीरी ने फोन उठाया, दरसे आले मोहम्मद में फोन डायल हुआ। तो जो मेरी तरफ करना, जहन मेरी तरफ रखना, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं उस दौर में शिया काफर का नारा अरूज पे था। मौलवी जलसों पे शिया काफर का नारा अपनी जिम्मेदारी समझ के लगवाते थे। जब आगा शोरश काश्मीरी ने फोन किया, दूसरी तरफ से मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने फोन उठाया। उसने कहा सरकार मैं आगा शोरश काश्मीरी बोल रहा हूं। फरमाया जी बोलिए। मौलाना इस्माइल की आप अखबारात नहीं पढ़ते? फरमाया रोजाना पढ़ता हूं। मिर्जा नासिर का चैलेंज नहीं पढ़ रहे? कहा पढ़ रहा हूं। तो फिर आपका क्या ख्याल है? मौलाना इस्माइल मुस्कुरा के, अभी तक उसने मुझे नहीं किया। रात के इस पहर में जो अकीदा सुनना चाहता उसने अभी तक मुझे चैलेंज नहीं किया। जब मुझे चैलेंज करेगा मैं किसी से पूछूंगा नहीं। उसने कहा जी ये सारे उलमाए किराम इकट्ठे होके मेरे पास आए हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब की इल्मी खिदमात से फायदा उठाया जाए। आखिर मौलाना इस्माइल की बड़ी इल्मी खिदमात है। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा और चेहरे पढ़ूंगा कि ये जुमला किस किस चेहरे पे असर किया है और किस किस सर के ऊपर से गुजर गया। जब उसने कहा ना आगा शोरश काश्मीरी ने, मैंने जो लफ्ज पहले का वो बात ज़हन में रखिएगा, शिया काफर का नारा अरूज पे था। उसने कहा ये सारे मौलवी कह रहे हैं कि मौलाना इस्माइल की इल्मी खिदमात हासिल करनी पड़ेगी। किबला इस्माइल ने कहका लगाया। शोरश काश्मीरी ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? किबला ने कहा पहले इन उलमाए कराम से एक बात पे फतवा तो लेके दे, इनसे इतना पूछ इस्लाम ने काफर से मदद मांगना जायज है? हाय हाय, क्या मजहब इस्लाम ने काफर से मदद मांगना जायज है? आगा शोरश काश्मीरी मुस्कुराए, मुस्कुरा के लगे मौलाना इस्माइल ये है हमारे घर की लड़ाइयां, फिर कभी हम बैठेंगे ये भाई भाई की लड़ाई है हम तय कर लेंगे। लेकिन अब ये इकट्ठे होके आप मुझे बताएं इनको क्या जवाब दूं? एक एक लफ्ज सुनने वाला, अब इनको क्या जवाब दो? कि बिला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने कहा शोरश काश्मीरी मैं आपके दिल की अथा गहराइयों से इज्जत करता हूं, मैं आपको कद्र की निगाह से देखता हूं, लेकिन आगा शोरश काश्मीरी जो तेरे पास बैठे ना, आप इन्हें नहीं जानते। मैं इनके दरमियान रह के आया हूं, मैं इनकी नस्लें भी जानता हूं, मैं इनके शजरे भी जानता हूं, मैं इनके किरदार भी जानता हूं। मुझे पता है ये रात की तरीकी में मिन्नतें करते हैं, दिन की रोशनी में मुकर जाते हैं। हाय हाय हाय, ये रात की तरीकी में मिन्नतें करते हैं, दिन की रोशनी में मुकर जाते हैं। आगा शोरश काश्मीरी ने कहा इसका मतलब मौलाना इस्माइल आप इनकार कर रहे हैं, आप मनाजरे के लिए नहीं आ रहे? कि बिला मुबल्लिग आज़म ने कहा मैं आंखों के बल चल के आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगा शोरश काश्मीरी ने कहा वो शर्त क्या है? मुबल्लिग आज़म ने कहा इन सारे मौलवियों को दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे भेज, कम से कम मेरे शहर वाले तो देखे या अली मदद के सारे मुनकर चल के आए। जिसको अली की मदद का इनकार था, ये सारे इकट्ठे हो
चल के आए। तारीख सुनाओ तुम्हें खत्म नबूवत की, ये तारीख अपने ज़हनों में महफूज रखो, ताकि आज के दौर में तुम जवाब दे सको कि खत्म नबूवत पे अगर कोई कुर्बानी है तो हमारी है। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद पे, क्या कहने उन उलमा कराम के जिनकी कब्रें हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी हैं, जिनका पेशा शिया नहीं, जिनका मजहब शिया था, जिन्होंने नगर नगर अली वलीउल्लाह फैलाया, छत छत पे अब्बास का अलम लहरवाया, क्रिया क्रिया नगर नगर जाके ज़हरा का हक मनवाया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे क़िबला मुबल्लिग आज़म को साथ लिया। रात के इस पहर में इतना थका हुआ मजमा अगर यूं अकीदा सुनेगा तो फिर आपकी इस अकीदे की बुलंदी को देख के मैं जुमला कहने लगा हूं। सारे मौलवी इकट्ठे होकर क़िबला मुबल्लिग आज़म इस्माइल को साथ लेके चल पड़े। पार्लियामेंट हाउस में मनाजरा था, जजेस, वुकला, दानश्वर, मिनिस्टर, ये सारे के सारे बैठे इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे मौलवी सामने कुर्सियों में बैठे हुए थे। मैं घड़े में मुंह दे के नहीं, किसी देहात में बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर के मरकज में लाउड स्पीकर पे अपनी इतनी कौम को गवाह बना के वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने लफ्ज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जहां तक मैं लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं, मुझे यकीन है ये लफ्ज वहां तक पहुंचेंगी जिन कानों की समातों तक मैं टकराना चाहता हूं, उन समातों तक टकराएंगे भी। जब मुबल्लिग आज़म को साथ लेके गए उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मिर्जा नासिर आगे टेबल पे बड़ी बड़ी किताबें रख के मिर्जा नासिर बैठा मौलवियों के चेहरे देख रहा था और उनसे कह रहा, उठते क्यों नहीं, मुनाजरा क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। सारे मौलवी कह रहे, हमें किसी का इंतजार है, कोई आ रहा है। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर जमी हुई थी। शायद बुजुर्गों के ज़हनों में वो तस्वीर आज भी मौजूद हो, वो मेरी हाथ तायद करके उठाएंगे। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पे थी। जब पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला, मुबल्लिग आज़म के सर पे कुल्ला, पीछे शागिर्दों के सरों पे किताबों के बक्से, अली का नौकर इस जलाल से पार्लियामेंट हाउस में आया जैसे दरबार में मुख्तार दाखिल हुआ था। इस जलाल के साथ मुबल्लिग आज़म के दाखिल हो रहा था। सारे मौलवी खुशी में उठ के खड़े हुए। मिर्जा नासिर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, क़िबला इस्माइल के सीने पे हाथ रखा, हाथ लगा, इस्माइल आप क्यों आ गए हैं, आप क्यों आ गए हैं। फरमाया तूने चैलेंज किया था, उसका तुझे गलत फहमी हो गई, मैंने मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। चैलेंज मुसलमानों को था, मोमिनों को नहीं था। अलीयुन वलीउल्लाह वालों को चैलेंज नहीं होता। दुश्मन बाहर से आए, अंदर से आए, हम तैयार हैं। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। शिया मरता मर जाए, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता ना करे। दुख होता है, तकलीफ होती है, पैदा शिया के घर में हो, कान में अजान अलीयुन वलीउल्लाह की दी जाए, मां बचपन से गोद में लेके मदरसों में आती रही हो और वो हाथ में तौसील मसाइल उठा के हमसे पूछ रहा है कि इसमें अलीयुन वलीउल्लाह कहां लिखा है। डूब के मर, तौसील मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली हकीकत काहिरा का नाम है। मरता मर सकता है शिया, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता नहीं कर सकता। मेरी ताईद आप करेंगे तो मैं जुमला अदा करूंगा। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं, अज़ादारी हुसैन पे कोई समझौता नहीं, मातम शबीर पे कोई समझौता नहीं, हुर्मत सादात पे कोई समझौता नहीं। वो कौमें बर्बाद हो जाती है जो अपना तशख्खुस छोड़ देती है। अलीयुन वलीउल्लाह तुम्हारी पहचान है। पीछे नजर दौड़ा के देखो कि हमारे बुजुर्गों ने विलायत अली को बचाने के लिए कीमतें क्या क्या दी। लियाकत भाई, मुझे जुमला क़िबला मुबल्लिग आज़म का अगला जुमला में मुझे अभी याद है, मैं क़िबला मुबल्लिग आज़म का था लोधरा में मुनाजरा, मुनाजरे का मौजूद जनाज़े रसूल हक के बतूल। सरना हलाना जुबान से बात करना, जनाज़े रसूल हक के बतूल।
रसूल का जनाजा किसने पढ़ा, किसने छोड़ा, बीबी का हक किसने नहीं दिया। इन दो मौजूआत पे मुनाजरा था। किबला मौलवी आज़म मौला इस्माइल मुनाजरा कर रहे थे, सामने मौलवी बदल बदल के आते रहे। एक मौलवी थक जाए दूसरा आ जाए, वो थक जाए तीसरा आ जाए। इधर अकेले मौला इस्माइल बैठे हुए, किताबों का ढेर सामने रखा। लुत्फ लेने वाली बात है, सामने किताबों का ढेर है। अगर शाम के वक्त एक मौलवी सामने आया, उसने कहा मौला इस्माइल किताबें बंद, बहस नहीं करनी, सवाल का जवाब, मुनाजरा खत्म। इल्म मुनाजरा का असूल है कि अगर फरीक जवाब देने में ताखीर कर दे, इसे भी शिकस्त तस्लीम किया जाता। और अकीदा आपने दूसरे की किताब से साबित करना। उसने कहा मौलवी इस्माइल सिर्फ सवाल का जवाब दे, तेरा मौजू क्या है मुनाजरे का। मौला इस्माइल ने कहा जनाजा रसूल हक के बतूल। उसका खत्म हो गई बहस, मुनाजरा ही खत्म हो गया। मुनाजरे का मौजू ही ठीक नहीं। किबला ने कहा मुनाजरे का मौजू क्यों ठीक नहीं। उसका मुझे सिर्फ इतना बता, तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो। मौला ने कहा बेशक। उसने कहा हाजिर समझते हो। बेशक हाजिर। नाजर समझते हो। मौला इस्माइल ने कहा तू बात आगे कर चलना चाहता है। उसने कहा नबी जिंदा है या नहीं है। मौला इस्माइल ने कहा बेशक जिंदा है। उसने कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। बात तो बड़ी वजनी थी। उसने कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। जिंदा का ना विरसा तकसीम होता है, फिर विरासत में लड़ाई क्यों कि बेटी का हक था या नहीं था। या तो नबी को जिंदा ना मानो, लिखो कि नबी मुर्दा है, मैं भी तेरे साथ बहस करता हूं कि नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि जनाजा किसने नहीं पढ़ा। नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि विरसा किसने नहीं दिया। लेकिन ये क्या बात हुई, दो दो अकीदे क्यों रख रहे हो। नबी जिंदा भी है, जनाजे पे बहस, नबी जिंदा भी है, विरासत में भी बहस। खुदा की कसम ये सवाल मौला इस्माइल पे हुआ और जवाब हम तक आया। मुबालग आज़म मौला इस्माइल पे सवाल हुआ, पूरा हाल, पूरा सामने से मजमा खुश हो गया, भाई मौलवी बाजी ले गया। अब इसके बाद मौलवी इस्माइल के पास गुंजाइश छोड़ी नहीं, या इस्माइल मुर्दा लिखेगा या मुनाजरे से भागेगा। इतना कहना था, मौला इस्माइल ने किताबें बंद करनी शुरू कर दी। शगीर से कहा उठा भी किताबें, मुनाजरा ही खत्म हो गया। जब शगीर तो किताबें उठाने लगा, मौलवी दूसरा जल्दी से उठ के अपनी कुर्सी से माइक पे आकर ना 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 इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐलान करके जा तो मुनाजरा हार के जा रहा है, मुझे भी पता चले मैं इस्माइल को हरा के जा रहा हूं। इतना कहना था, मुबल्लिग आज़म माइक पे और उसने कहा तूने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया, बात तय कर दी है तूने कि जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा नहीं होता। ये कह के इस्माइल ने गर्दन से पकड़ के माइक के सामने लाए, लाका एक ऐलान तू भी करके जा, जिंदा के खलीफे भी कोई नहीं होता। बात फिर पूरी करके हमें फख्र है।